Okay, students. So continuing with our previous, step from for the urine formation, we said that urine formation completes in 3 steps, right? So continuing with that process, already we discussed our first process, that is our ultrafiltration. So now we are going to talk about here in this lecture, that is selective reabsorption and tubular secretion, right? So selective reabsorption, basically here I'm going to talk about very important things with you. So because then you will be able to understand कि हमारे यूरिन में रिलीज क्या हो रहा है, right? So selective reabsorption, it includes दो सब्सटेंसेस, बेसिकली यहाँ से हमने सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करना है नाउ, बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट कि हमारा जो फिल्ट्रेट है, स्पेशली नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, दैट is having glucose, that is having amino acid, that is having water soluble vitamins. So those substances which are present in our nephric filtrate, we have divided them into 3 categories. It is very easy, it will be very easy for you to understand in this way, right? NCERT में ये mention नहीं है, so listen to me very carefully कि जो जो हमारे nephric filtrate में present है, we have ordered or we have classified them into 3 categories. One is the high threshold substances, then is our low threshold and non threshold substances. Term is clear? High threshold, low and नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस. हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस हम किनको बोल रहे हैं? दो सब्सटेंसेस विच आर एब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली. जैसे कि इन प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू, नॉट प्रीवियस, आई थिंक इन अवर yesterday lecture I told you that glucose 100% absorbed, amino acids 100% absorbed. So basically those substances which are absorbed by our tubules, reabsorbed by our tubules completely or almost completely, that is called high threshold substances. And now one more thing here you have to pay attention for that. मैंने कहा है absorbed completely, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जितनी concentration हमारी बॉडी में चाहिए उससे ज़्यादा absorb हो जाएंगे. No, that can't be happen. The amount, the concentration which is needed by our body, जितना हमारा concentration fix है उतना ही absorb होगा. जैसे कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स, their renal threshold limit जो है that is 180 mg per 100 ml of nephric filtrate. मतलब कि इतना ही अमाउंट 180 mg पर 100 ml ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से इतना ही ग्लूकोज और अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब हो सकता है. अगर हम बोल दें कि ओके, complete glucose is absorbed by our kidney, from our nephric filtrate, complete amino acid, complete means without any limit, तब तो हमारा कभी ग्लूकोज हमारे यूरिन में आना ही नहीं चाहिए. तो इस केस में तो फिर डायबिटिक पर्सन जो हैं उनके यूरिन में ग्लूकोज आना ही नहीं चाहिए था, राइट? बट ऐसा नहीं होता है. इफ़ वैल्यू इज़ क्रॉसिंग or increasing more than 180 mg, then definitely glucose will be removed from the body. और ये होता है किन केसेस में होता है? स्पेशली द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, क्योंकि उनमें ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है, राइट? You are getting my point कि high threshold substances, which are those substances which are getting absorbed completely but according to their concentration, जितना concentration is required in our body, that is the limit, थ्रेशहोल्ड लिमिट. एंड ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की लिमिट जो होती है दैट इज़ 180 mg पर 100 ml. जो ग्लूकोज की, स्पेशली नॉट द एग्जैक्टली द अमाइनो एसिड, इट इज़ फॉर द ग्लूकोज. अगर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन आपके नेफ्रिक फिल्ट्रेट में 180 से ज़्यादा है तो पीसीटी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी. 180 से ज़्यादा 180 कर लेगी, बाकी फिर आगे भेज देगी. दैट हैज़ टू बी रिमूव्ड, that will removed in the urine. Now low threshold जो कि बहुत
कम क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करती है हमारी नेफ्रॉन एरिया, दैट एब्जॉर्ब्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दैट इज़ यूरिया. नॉन थ्रेशोल्ड जो बिल्कुल ही किसी भी ट्यूब्यूलर पार्ट में एब्जॉर्ब नहीं किए होते हैं, they are not absorbed at all. It means they are released by our collecting डक्ट. मतलब अल्टीमेटली हमें कलेक्टिंग डक्ट में जो हमारा यूरिन जब बन जाता है तो हमें ये वाले सब्सटेंसेस तो वहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे. और कौन कौन से हैं नॉन थ्रेशोल्ड? हिपुरिक एसिड. हिपुरिक एसिड इज एक्चुअली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड. बेंजोइक एसिड होता है एक्चुअली, एसिड प्लस it is the amino acid. It is the combination of acid plus glycine. It is hippuric acid. It is a waste for our body. Creatinine is another waste. जब भी कभी हमारा कोई मसल, जैसे जैसे मसल एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो उनका वियर एंड टीयर भी होता है, थोड़े ख़राब भी होते हैं, तो बेसिकली दे प्रोड्यूस दिस वेस्ट, दैट इज़ क्रेटिनिन. अगर मैं बोलूँ कि ये दोनों हमारी बॉडी में इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं, इट मीन्स योर किडनी इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, बिकॉज ये वो सब्सटेंसेस हैं, दीज आर दो सब्सटेंसेस जो कि हमारी नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स में कहीं एब्जॉर्ब नहीं हो रहे. दे मस्ट हैव टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द collecting duct, by the collecting duct, right? So this reabsorption जो पूरा ये process है, glucose, amino acid, this reabsorption can be passively and this can be happened actively. Usually nitrogenous waste जो है, that is like urea, ये passively transport हो जाता है, that is reabsorbed by the passive process. but जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, आयंस हैं, दे आर रीअब्जॉर्ब्ड अवर एक्टिव प्रोसेस. दे नीड एनर्जी. दैट इज़ वाई पीसीटी के पास क्या होता है एब्जॉर्प्शन के लिए? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम प्लस इट हैज़ it has our mitochondria. वो इसीलिए होता है, so that these ions, glucose, amino acids, they can be reabsorbed, क्योंकि ये against the concentration gradient है, so they can be reabsorbed by actively, right? Now this diagram is going to solve many questions, right? डायग्राम हमें बहुत अच्छे से क्लियर है. ये हमारा क्या है यहाँ पे? नेफ्रिक फिल्ट्रेट, राइट? दिस इज़ आवर नेफ्रिक फिल्ट्रेट. नाउ दिस नेफ्रिक फिल्ट्रेट इज़ कमिंग डाउन टू पीसीटी, राइट? ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट आया हमारा घूमता हुआ, कहाँ पहुँचा? पीसीटी के पास. पीसीटी क्या कर रही है? यहाँ पे जो जितनी भी एब्जॉर्प्शन है मोस्टली दैट इज़ एक्टिव एब्जॉर्प्शन. इसका मतलब एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या क्या आता है? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड. कितना परसेंटेज? ऑलमोस्ट. दे आर हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, तो पूरे के पूरे एब्जॉर्ब हो जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग. 70 to 80% हमारे सोडियम एंड पोटाशियम आयंस दे गेट एब्जॉर्ब्ड हेयर. 70 to 80% मेजॉरिटी हो जाते हैं. क्लोराइड आयंस को एनर्जी नहीं चाहिए, दे गेट पैसिवली डिफ्यूज्ड. पैसिवली उनका डिफ्यूजन हो जाता है, दे एब्जॉर्ब पैसिवली विदाउट एनर्जी. वाटर also passively absorbed by the osmotic process. Urea, that is also absorbed here by diffusion. So basically chloride ions, water, urea, they absorbed passively in PCT. Glucose, amino acids, sodium ions, potassium ions, they are absorbed actively in PCT. अब ये आप ध्यान से देखो ना, वही दिस नेफ्रिक फिल्ट्रेट इज कमिंग टू पीसीटी. पीसीटी ने क्या क्या एब्जॉर्ब कर लिया है यहाँ पे? नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से इसने ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लिया, अमाइनो एसिड ले लिए, 70 to 80% सोडियम पोटाशियम भी ले लिया, क्लोराइड भी ले लिया, वाटर भी कर लिया एब्जॉर्ब, और यूरिया भी थोड़ा अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लिया. नाउ दिस इज कमिंग टू this filtrate, it is coming to now descending limb.
डिसेंडिंग लिम्ब क्या होती है, परमिएबल टू वाटर। सो यहाँ पे फिल्ट्रेट में से क्या एब्जॉर्ब होगा, जो फिल्ट्रेट बचा हुआ आएगा, क्योंकि बाकी पीसीटी ने एब्जॉर्ब कर लिया, रीएब्जॉर्ब कर लिया। आई विल नॉट यूज द वर्ड एब्जॉर्ब, रीएब्जॉर्ब, क्योंकि ग्लूकोज डाइजेशन के टाइम पे भी एब्जॉर्ब होता है, यहाँ तो वो दोबारा रीएब्जॉर्ब हो रहा है आपकी चाय पत्ती से। सो बेसिकली अब फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है हमारा, यहाँ पे इसको कहाँ क्या अब्जॉर्ब होगा, यहाँ से water. So new nephric filtrate when reaches in our descending limb, तो यहाँ से water absorb हो जाएगा। अगर water absorb कर लिया है आपने तो ये क्या बन जाएगा हमारा nephric filtrate, it will become now hypertonic, क्योंकि आपने water absorb कर लिया, क्योंकि इस ट्यूब्यूल ने water तो absorb कर लिया, right? Now this filtrate, this hypertonic filtrate, it will move to now our wider limb which is ascending limb. ascending limb क्या क्या absorb करेगी हमारे, क्योंकि water तो absorb नहीं कर सकती, impermeable है, so ये ions absorb करेगी। कौन कौन से, सोडियम क्लोराइड आइंस, पोटाशियम आइंस एंड बाइकार्बोनेट आइंस। ये क्वेश्चन आता है, बाइकार्बोनेट आइंस यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ये फिल्ट्रेट आपका देखो, यहाँ पे आइंस एब्जॉर्ब हुए थे, राइट, पीसीटी सॉरी, पीसीटी में आयंस एब्जॉर्ब हुए थे एंड दिस वाज आइसोटोनिक टू प्लाज्मा। अब अगेन यहाँ से हमने यहाँ पे क्योंकि वाटर जो है एब्जॉर्ब हो गया तो द सॉल्यूशन बिकम हाइपरटोनिक। अब इस हाइपरटोनिक में से फिर से आपने आयंस एब्जॉर्ब कर लिए, सो इट बिकम्स अगेन आइसोटोनिक। नाउ दिस सॉल्यूशन इट विल रीच टू DCT। ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट हमारा कहाँ पहुँचा अब, DCT। और DCT अगेन इट विल मोर एंड मोर रीएब्जॉर्ब सोडियम, पोटाशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयंस। नाउ this final filtrate will reach to collecting duct, right? और यहाँ पे होगा absorption वाटर का। अभी तक हमारे आयंस जितने थे एब्जॉर्ब हो चुके हैं। नाउ देयर इज़ इन कलेक्टिंग डक्ट जितना भी थोड़ा बचा वाटर है दैट विल बी रीएब्जॉर्ब। 90 ऑलमोस्ट 95% वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। दिस वॉल, कलेक्टिंग डक्ट की जो वॉल है, इट इज़ सेंसिटिव और this permeability of this wall, it is controlled by a hormone that is called, very very important hormone, antidiuretic hormone. Actually because of this hormone this wall is permeable to absorb water। जो ये क्वेश्चन आता है कि कलेक्टिंग डक्ट में ऐसा क्या प्रेजेंट है, इट हैज़ एंटीडायूरेटिक हार्मोन। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये डायग्राम हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसने आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, राइट। यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा होगा, हाइपरटोनिक, यहाँ पे भी हाइपरटोनिक। ऊपर जैसे ही असेंडिंग लिम्ब में पहुँचेगा ये हो जाएगा चेंज, यहाँ से हम आयंस एब्जॉर्ब कर लेंगे, DCT फिर से आयंस एब्जॉर्ब करेगी एंड फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, राइट। नाउ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन इज़ नोन एज रीएब्जॉर्प्शन। वाई, क्योंकि ग्लूकोज तो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जो भी हमारा फिल्ट्रेट है बेसिकली उसमें से हम दोबारा रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं चीज़ें, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द वर्ड रीएब्जॉर्प्शन। अब PCT का फंक्शन क्या हो गया है, क्योंकि ये क्या कर रही है बेसिकली, हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर रही है। सो बेसिकली इट इज़ मेंटेनिंग pH, क्योंकि यहाँ पे आयंस भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं, सोडियम पोटाशियम आयंस, सो इट इज़ मेंटेनिंग pH एंड आयनिक बैलेंस बाय द सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ। ये पूरा एब्जॉर्ब करने के बाद पूरे बाइकार्बोनेट आयंस एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर दिस H पॉजिटिव अमोनिया एंड पोटाशियम आयंस को छोड़ देती है हमारे फिल्ट्रेट में। सो बेसिकली मेंटेन करती है ये आयनिक बैलेंस को। नेक्स्ट इज़ द हेनलेज लूप। हेनलेज लूप में अगर हम देखें ज़रा, हेनलेज लूप, इस जो ये हमारा लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम थोड़ा सा मिनिमम है, रीएब्जॉर्प्शन का काम, बट क्योंकि यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, सो दे आर हेल्पिंग अस इन मेंटेनिंग द ऑस्मोलैरिटी। क्योंकि ऑस्मोलैरिटी क्यों, क्योंकि एक तो वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है एज वेल एज आयन इन दे आर गेटिंग
exchanged here. Descending limb में बात करें तो filtrate is getting hypertonic. Ascending limb में filtrate again becoming concentrated जैसे जैसे वो ऊपर पास होता है, क्योंकि जो आपके फिल्ट्रेट में से हम क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं वहाँ पे आयंस, वहाँ तो वाटर एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन है ही नहीं है, सो इट बिकम अगेन कॉन्सेंट्रेटेड. कलेक्टिंग डक्ट में जैसे ही फाइनली पहुँचता है सब कुछ, तो वाटर उस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन में से रीएब्जॉर्ब हो जाता है. वाटर रीएब्जॉर्ब होने का मतलब है बेसिकली हम अपना ऑस्मोटिक बैलेंस बॉडी का बिगाड़ना नहीं चाह रहे. वो ऑस्मोसिस इज रिलेटेड विद योर वाटर, सो टू दैट वाटर बैलेंस इज ऑल्सो मेंटेन बाय कलेक्टिंग डक्ट बाय वाटर रीएब्जॉर्प्शन. कौन सा हार्मोन यहाँ पे है? एंटी diuretic hormone. So again the function is same, pH and ionic balance by secretion of potassium and H positive ion. And the last point is tubular secretions. And in secretions को बेसिकली हेल्प कौन करता है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस. बेसिकली जो हमारा जो ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, ये जो हमारी पीसीटी है, पीसीटी और डीसीटी, दे पोर देयर सिक्रीशंस इनटू दिस फिल्ट्रेट, राइट. ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको फिल्ट्रेट में डालती हैं. कहाँ से आ रहा है ये वेस्ट मटेरियल? एक्चुअली देयर आर द ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर सेल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर पीसीटी एंड डीसीटी. दे एब्जॉर्ब वेस्ट. ये जो हमारी पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज हैं, जस्ट लुक एट देयर दैट दीज पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज दे मूविंग अराउंड आवर पीसीटी एंड डीसीटी. फ्रॉम these capillaries they are carrying blood. From these capillaries, waste, if any waste is present, that is poured into PCT, राइट. और पीसीटी उसको कहाँ छोड़ती हैं? फिल्ट्रेट में. सो बेसिकली कौन एब्जॉर्ब कर रहा है इस वेस्ट को? दैट इज़ द ग्लैंडुलर सेल्स. ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी, दे एब्जॉर्ब वेस्ट एंड पोर इनटू द ट्यूब्यूल्स, and then tubules pour these secretions into the filtrate. PCT, basically PCT जो है, it helps in removal of if the blood is having excess amount of H positive ions, ammonia, creatinine, hippuric acid, drugs. ये सारा का सारा जो है ब्लड में से पीसीटी इसको ले लेती है और वो फिल्ट्रेट में डाल देती है, राइट. क्या क्या चीज़ें हैं? H पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएं, क्योंकि आयनिक बैलेंस तो मेंटेन करना ही है, तो एक्सेस नहीं चाहिए, अमोनिया नहीं चाहिए, क्रेटिनिन नहीं चाहिए, हिपुरिक एसिड नहीं चाहिए. मेडिसिन, बेसिकली दोज मेडिसिन विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, इट हैज़ टू बी मूव्ड आउट. सो पीसीटी उसको डालती है फिल्ट्रेट में और फाइनली इट मूव्स आउट टू द, पूरा घूम के कलेक्टिव डक्ट तक पहुंच जाता है. नाउ फ्रॉम पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज, एज यू कैन सी दीज पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज, दे आर रनिंग ओवर पीसीटी एंड डीसीटी. सो दीज पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज few secretion, because these capillaries go into DCT also, so few secretion they are poured into DCT also. So DCT क्या क्या रिमूव करेगी फिर वहाँ से? H पॉजिटिव फिल्ट्रेट में डाल देती है, बाइकार्बोनेट वहाँ से डाल देती है, पोटाशियम आयंस डाल देती है, एज वेल एज अमोनियम आयंस डाल देती है. वो बोलती है कि ब्लड में ये सब नहीं चाहिए, सो it puts all these things into the filtrate. So basically कौन secrete कर रहा है ये सारा कुछ filtrate में? that is the tubules. कौन कौन सी? PCT एंड DCT. एंड ये जो PCT और DCT वाला सिक्रीशन है, दैट इज़ द मेन मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन मैरिन फिशेस, क्योंकि उनके पास ग्लोमेरुलस नहीं होता है. सो उनमें जो काम है वो PCT और DCT ही करते हैं, राइट. दे डू नॉट हैव ग्लोमेरुलस, सो दे पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ट्यूब्यूल्स. जो अल्टीमेटली अब हमारे पास बचा क्या? नेफ्रिक फिल्ट्रेट में क्या आया? हाई थ्रेशोल्ड, लो थ्रेशोल्ड एंड नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस. सो इसका मतलब जो मेरा यूरिन बन रहा है उसमें मेरे पास क्या क्या है? यूरिया, हिपुरिक एसिड, राइट, एज वेल एज माई creatinine, means low threshold substances and
non-threshold substances. So here I am leaving you with few questions which will help you to that understand कि आपको कितना समझ में आया है. The normal value of GFR is, अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई विल रिक्वेस्ट कि इससे पहले वाला लेक्चर गो and watch it and listen to it carefully. It will the easiest to answer. Next question is, the blood from glomerulus is carried away by, that is the easiest to answer कि glomerulus से कौन सी ऐसी आर्टरी है जो लेके जाती है अलग से, efferent arteriole, efferent arteriole, peritubular, or is it renal vein? Third one is PCT. PCT is lined by, okay, I think I have not mentioned, I have only mentioned the brush border epithelium, but this brush border is cuboidal. It is cuboidal in nature, right? So if you have not mentioned it in your notes, then please mention it that the PCT is lined by simple cuboidal brush border epithelium. So this is all about our 3 steps of the urine formation. Next we will start with our concentration